Hello students, my name is Yogesh Jain. Today we are going to talk about active voice and passive voice. The topic is active and passive voice. So what are these? What is active voice and what is passive voice? Let's see. See this sentence, like I say, he broke the chair. He broke the chair means in a sentence we have subject, we have verb, we have object. In a sentence we have subject, verb, object in this manner. First we have subject, then verb and object. And in this sentence we know who broke the chair, matlab who performed the action. He, and he is subject. So here subject is doing the work. We can say subject is doer of the action, or we can say subject is active, means the subject is doing work, it is performing the action, means it is in active form. So if subject is active form, then we will say verb is in active form. And what is object? Object is doing nothing, it is just the receiver of the action. काम किस पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे, इस सेंटेंस में. So here it has become receiver of the action. All right. So here he broke the chair. In this sentence he is doing the work and it is active, it is doer of the action. So verb is in active form. So we will say the sentence is in active voice. The sentence is written in active voice. We can say, now look this sentence. The chair was broken by him. If we talk about the sense is same of this sentence and this sentence. Okay, the chair was broken by him means the action of breaking the chair was done by him. All right, and here we have he broke the chair. Sense is same, but both sentences written differently grammatically. Grammatically दोनों सेंटेंस डिफरेंट तरह से लिखे हुए हैं. All right. Again in this sentence the chair is subject, was broken is verb, and by him in this sentence him is object. All right. But what is being done here? यहाँ पर हो क्या रहा है? इस सेंटेंस में हो ये रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा. ऑल राइट. इस सेंटेंस में काम कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट. चेयर तो टूटी, ठीक है, चेयर रिसीवर ऑफ द एक्शन है. हियर द चेयर इज रिसीवर ऑफ द एक्शन and who is performing the action? The object is performing the action. We can say object is doer of the action. ठीक है. अगर ये doer of the action है तो एक्टिव कौन हुआ? ऑब्जेक्ट. और अगर ऑब्जेक्ट एक्टिव है तो पैसिव क्या है? हमारा सब्जेक्ट ये पैसिव है, मीन्स it is not doing the action, it is the receiver of the action. और अगर सब्जेक्ट पैसिव है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी? पैसिव. वर्ब भी हमारी क्या होगी? पैसिव. ऑलराइट. हियर द सब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन and object is doer of the action. So we will say here verb is passive. So the sentence is written in passive voice. You have to remember that in active voice subject is active and in passive voice subject is not active. That is active voice and passive voice. All right. Now
जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूं, राहुल इज ईटिंग अ बनाना, हियर सब्जेक्ट इज एक्टिव. द वॉशरमैन इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, सब्जेक्ट इज एक्टिव. ओके. आई एम टीचिंग यू, हियर आई एक्टिव. ठीक है, ये सब सब्जेक्ट यहां पर एक्टिव है. इन सारे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट एक्टिव है. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. सो ऑल दी सेंटेंसेज आर एक्टिव वॉइस. ऑल दी सेंटेंसेज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस. ठीक है, डन. सो व्हाट वी कैन से, we can say active voice is a sentence where subject is active and passive voice is where subject is passive. ठीक है, अब हम सेंटेंसेस को दो तरह से क्यों यूज कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी. व्हाट इज द रीजन? इफ वी आर सेइंग ही ब्रोक द चेयर, देन व्हाट इज द नीड ऑफ सेइंग द चेयर वाज ब्रोकन बाय हिम? क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? तो ऐसा इसलिए होता है, वी कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेज इन पैसिव वॉइस वेयर सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मीन्स हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. समथिंग हैपन्ड दैट इज इंपॉर्टेंट. मतलब सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, हम नॉर्मल सेंटेंस की बात करें, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब काम किसने किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रोसेस क्या हुआ, मतलब जो ऑब्जेक्ट था उस पर हमारा फोकस है. तो हम ऑब्जेक्ट को लेकर सेंटेंस क्रिएट करते हैं. ठीक है, और तब हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है. देन वी नीड पैसिव वॉइस टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस वेयर ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, लाइक वी से द क्लोथ्स आर बींग वॉश्ड, कपड़े अभी धुल रहे हैं, धोए जा रहे हैं. द क्लोथ्स आर बींग वॉश्ड. हियर हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, हु इज डूइंग द एक्शन, कौन कपड़े धो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कपड़े. गॉट इट? सो इन दिस मैनर वी नीड सेंटेंसेज इन पैसिव वॉइस. ओके, नाउ हाउ टू कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. मोस्टली एग्जाम में क्या होता है, आपको एक सेंटेंस मिलता है एंड यू आर इंस्ट्रक्टेड टू कन्वर्ट दैट सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. आपको सेंटेंस मिला एक्टिव वॉइस में, आपसे पूछा अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो वो कैसे होगा? हाउ टू कन्वर्ट एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, वी आर गोइंग टू लर्न दैट. ओके, सो लेट्स हैव द रूल्स हाउ टू कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. इसके कुछ जो बेसिक रूल्स है वो हम एक बार देखते हैं. टू कन्वर्ट एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाना है तो क्या चाहिए, क्या क्या करना होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अभी क्या हुआ था, ही ब्रोक द चेयर एंड द चेयर वॉज ब्रोकन बाय हिम. जब हम एक्टिव को पैसिव बना रहे थे तो हमने सबसे पहले किसको पिक किया एक्टिव वॉइस में से? ऑब्जेक्ट को, द चेयर. अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो पैसिव बन ही नहीं सकता था. ऑल राइट, इट मीन्स when we are converting an active voice into passive voice, then we need object in active voice. Object is must in active voice to convert into passive voice. किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंसेस without object cannot be converted
इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहली बात तो ये है, देन नंबर 2, what we did, we took object of active voice and made that subject of passive voice, ठीक है। और जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का उसको हमने बना दिया था ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का। तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मीन्स एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो यहां बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो यहां पे बन जाएगा सब्जेक्ट। ऑलराइट, ये हो गया हमारा सेकेंड रूल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की। सो हमेशा ऑलवेज वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। एनी सेंटेंस रिलेटेड टू एनी टेंस, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, अगर वो पैसिव वॉइस में है तो उसमें मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। ऑलवेज यूज V3 as main verb in पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा आएगी थर्ड फॉर्म में, दैट इज द रूल। ओके, नाउ सबसे लास्ट में जो है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस में, तो उसके पहले हम एक वर्ड लगाएंगे बाय। मोस्टली हम बाय लगाते हैं, बाय के अलावा कुछ और प्रेपोजिशन भी आ सकती है लाइक विद, एट, ठीक है। बट 90% चांसेस हैं कि हम बाय लगाएंगे ऑब्जेक्ट के पहले। मोस्टली बाय इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले हम बाय प्रेपोजिशन लगाएंगे। सो दीज आर द 4 वेरी बेसिक रूल्स। ये जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का उसकी मेन चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, हमेशा V3 यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा देंगे। ये सारे काम होंगे पैसिव वॉइस में। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ये हम चेक करेंगे एक्टिव वॉइस में कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तभी उसका पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। तो ये 4 रूल्स हैं। और आगे क्या रूल्स हैं वो देखते हैं हम। लाइक आई सेड, चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो मेन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ अगर प्रेजेंट टेंस हुआ तो सिंपल प्रेजेंट हुआ, या सिंपल पास्ट हुआ, या कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ, तो अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो V3 नहीं आता इन सब में। लेकिन जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो V3 आ जाएगा। देन हाउ वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व, टू चेक दैट द सेंटेंस बिलोंग्स टू विच टेंस। हमें कैसे पता पड़ेगा कि कोई सेंटेंस किस टेंस का है अगर सब में ही V3 आ जाएगा तो। सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू हेल्पिंग वर्ब। तो फिर हेल्पिंग वर्ब को देखकर हमें टेंस का पता करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ का सेटिंग कुछ अलग तरह से होगा जो हमने टेंस टॉपिक पढ़ा था उसके कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती।
मेन वर्ब भी V1 होती है, तो उसको कन्वर्ट जब हम करेंगे पैसिव वॉइस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब V3 ही आएगी. सो लेट्स टेक अ लुक स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा. तो सबसे पहले हम बात करें नंबर 5 रूल्स में. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस is MR plus V3 is used in पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में क्या होगा कि इज MR प्लस V3 यूज हो जाएगा पैसिव वॉइस के साथ. ठीक है, और वी विल टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन सिंपल पास्ट. We use was were plus V3 is used in passive voice. was were plus V3 यूज हो जाएगा पैसिव वॉइस के साथ. ठीक है, अब अगर आपको was were plus V3 या is MR plus V3 दिखे सेंटेंस में तो आप समझ जाओ कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस जो होता है एक्टिव वॉइस का उसमें was were के बाद ING फॉर्म ऑफ वर्ब आता है या इज MR के साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, वो होता है एक्टिव वॉइस. और अगर इज MR प्लस V3 was were प्लस V3 हो गया तो वो है पैसिव वॉइस. We will see the sentences examples of all these. Number 7. Now, for all type of continuous tense, what happens? Or we can say जैसे एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है. एक्टिव वॉइस में है ING फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब जो है वो ING फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो उसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसमें बीइंग ऐड हो जाएगा, यानी कि बीइंग प्लस V3 हो जाएगा. ठीक है, अगर इधर है थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो कन्वर्ट होके पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस V3. ओके, दीज आर दी चेंजेस. अगर ING फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी कि ऐसा किस में होगा, ऐसा होगा कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. और ऐसा किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. तो उसमें कुछ नहीं करना, पैसिव वॉइस में बीइंग और बीन लगा देना है. ठीक है. एंड there are some tenses which cannot be converted into passive voice. कुछ टेंस ऐसे हैं जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकते. ठीक है, वो टेंस कौन कौन से हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड all perfect continuous. जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, जितने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सब कन्वर्ट नहीं हो सकते पैसिव वॉइस में. cannot be converted into passive voice. You can see the sentence, future continuous and all perfect continuous cannot be converted into passive voice. कोई सेंटेंस है, अगर इन टेंसेज में आपको मिल जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे पैसिव वॉइस में. ऑल राइट. एंड द लास्ट रूल,
And the last rule, number 8 or 9, modal verbs. If we are having a modal verb in our active voice, then it will be converted in passive voice with be. We will add be before it. What we have to do? Add be before V3 in case of if active voice has modal verbs. नाउ अब ये मॉडल वर्ब कैसी होती है? ये मॉडल वर्ब होती है जैसे कि वी हैव रेड इट, जैसे कि विल, शैल, कैन, मे, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, एटसेट्रा। ये मॉडल वर्ब्स होती है। अगर ये सेंटेंस में हमें मिलती है एक्टिव वॉइस में, तो व्हेन वी विल कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, वी विल ऐड बी बिफोर V3. Okay, so these are 9 rules to convert a passive into, to convert an active into passive voice. नाउ एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कुछ एग्जाम्पल्स की बात कही थी, लेके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि सबसे पहले मैं इसी का एग्जाम्पल लेता हूं। एक सिंपल सा सेंटेंस है, आई विल डू दैट। वो मैं कर लूंगा, आई विल डू दैट। हियर आई इज सब्जेक्ट, विल मॉडल वर्ब, डू इज मेन वर्ब एंड दैट इज ऑब्जेक्ट. So it will come first, that will. Now we will add be before V3. That will be now do. Always use V3. So do will become done by me. Simple. We will add be before the V3 in case if we have modal verb in active voice. As we have written that in simple present tense we will take is, am, are plus V3. Like we have sentence, he plays cricket. सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो क्रिकेट खेलता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ वी हैव रिटन, वी विल यूज इज, एम, आर प्लस V3 टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस. सो क्रिकेट विल बिकम सब्जेक्ट हियर, प्लेज. नाउ क्रिकेट इज सिंगुलर, सो वी विल टेक इज, देन played. Always use V3. Cricket is played by him. All right, that is simple present tense. ठीक है. अगर ये होता he is playing cricket, तो हमने पढ़ा है कि अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है, अगर यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है एक्टिव वॉइस में, तो हम क्या करेंगे? बीइंग, BEING लगा देंगे V3 के पहले. करके देखते हैं. क्रिकेट इज बीइंग प्लेड. ठीक है, हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी. V3 के पहले बीइंग लगाना है. क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम. वेरी सिंपल. नाउ अगर होता
perfect tense, like he had, या फिर मैं बोलता हूं हैज, he has played cricket, then तो क्या होता? Now it is perfect tense. We have V3 here, and our rule tells us that if we are having V3 in active voice, then we will place been before it to convert it into passive voice. So let's do that. Cricket has been played by him. All right. I think mostly we have covered all tenses. ठीक है, मोस्टली हमने सारे टेंस कवर कर लिए, मतलब उनके सारे सबके एग्जाम्पल ले लिए. अगर होता ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला था, ही प्लेड क्रिकेट, तो क्या हो जाता? क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम. ये रूल्स में है हमारे कि अगर सिंपल पास्ट होगा तो क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा तो V2 को हम चेंज कर देंगे वॉज वर प्लस V3 में. ठीक है, प्लेड का क्या हो जाएगा? वॉज प्लेड या वर प्लेड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सो इन दिस मैनर वी विल कन्वर्ट एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस with correct grammatical terms. All right. Now we will learn different types of sentences. जो different type के sentences होते हैं, means we have assertive sentence, we have interrogative sentence, we have optative, we have imperative sentence. ये अलग अलग तरह के सेंटेंस हैं. इनको जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? बेसिक रूल्स तो हमने देख ही लिए. हर सेंटेंस में कुछ चीज़ें कुछ अलग तरह से होती है, तो वो हम देखते हैं वो कैसे होगा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लाइक वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस जो हमने देखा. अभी असर्टिव सेंटेंस तो हमने इतने सारे देखे. ठीक है, असर्टिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. हाउ दे आर कन्वर्टेड? जस्ट देयर बेसिक रूल्स विल बी अप्लाइड. वहाँ पर बेसिक रूल्स अप्लाई होंगे. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो असर्टिव सेंटेंस में फिट हो जाएगा. जैसे कि एक सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस मैं लेता हूँ, जैसे कि he did not do the homework, means we have did not V1 in the sentence, means it is simple past. ये क्या है? simple past है. he did not do the homework, उसने homework नहीं किया था. Now when we will convert it into passive voice, तो the homework is object. Okay, it has become subject here. The homework now did not do. अब did not do simple past, और simple past में हमें क्या करना है? was were plus V3. तो ठीक है, homework was, वर तो नहीं आ सकता ना, प्लूरल नहीं है ये, तो वर नहीं आएगा, was आएगा क्योंकि सिंगुलर है ये. Now the sentence has not, it is negative sentence, so we will place not after it. The homework was not done. Do will become done by him. In this manner we will convert assertive sentences into passive voice. Okay. Now we have interrogative sentences. The questions which
हैव क्वेश्चन फॉर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है उस पर जब क्वेश्चन किया जाए, उसके बारे में कोई क्वेश्चन किया जाए, तो उन सेंटेंसेस को हम लेते हैं पहले, उनको कैसे कन्वर्ट करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि हमारा सेंटेंस है हु इसको सिंपल लिख रखता हूं मैं अभी, हु टुक द पेन। यहाँ पे पेन रखा था, किसने लिया, इस तरह का वो बनाना पूछना चाहता है सेंटेंस, तो हु टुक द पेन, पेन किसने लिया, ठीक है। नाउ इन दिस सेंटेंस वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज द पेन। ये तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट है हु, जिसने काम किया, अब उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि वो काम किसने किया, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्वेश्चन में है, ठीक है। तो हु टुक द पेन इज ऑब्जेक्ट, टुक इज वर्ब एंड हु इज सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हियर वी विल कन्वर्ट इट लाइक हु विल बिकम बाय हुम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मान लो राम होता, राम टुक द पेन, तो लास्ट में बाय राम आ जाता ना, यहाँ पे द पेन वॉज टेकन बाय राम, ठीक है। लेकिन हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं कन्वर्ट करेंगे, द पेन वॉज टेकन बाय हुम, ठीक है, क्योंकि WH वर्ड पहले आएगा ना, तो इसीलिए हम पूरा का पूरा बाय हुम पहले लगा देंगे। बाय हुम वॉज द पेन टेकन, ऑलराइट, एंड सेम V3 आ जाएगा। द पेन वॉज टेकन बाय हुम, ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि WH वर्ड पहले आएगा, तो बाय हुम को हमने सबसे पहले ले लिया। बाय हुम वॉज द पेन टेकन, ठीक है। अब इसी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका आंसर है मान लो राम, राम ने पेन लिया था, राम टुक द पेन। लेकिन मैं अब ये पूछता हूँ राम ने क्या लिया था, ठीक है। तो इसका एक्टिव वॉइस मैं ऐसे बनाता हूँ, व्हाट डिड राम टेक, राम ने क्या लिया था। मान लो क्वेश्चन है हमारा द पेन, मतलब आंसर है हमारा द पेन, तो अब ये क्वेश्चन किस पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो इसकी प्लेसिंग क्या है, इसकी प्लेसिंग है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये शुरू में आएगा पैसिव वॉइस में, ऐसा ही कुछ हम करेंगे। तो द पेन की जगह हमने लिखा, उसका आंसर है, मतलब कि क्वेश्चन है व्हाट, तो ऐसे ही कर देंगे हम, व्हाट वॉज टेकन बाय, हियर राम इज ऑब्जेक्ट, it will become, sorry, Ram is subject, here the doer of action is Ram, it is subject, and it will become object here in passive voice, so by Ram, all right. What was taken by Ram, in this manner we will convert in interrogative sentence. If the question is on subject, then we will take by whom, or if the question is on object, then we will take what, means same WH word will be repeated, what, then we will convert the rest of the sentence with proper rules, all right. In this manner we convert interrogative sentences, okay. So these are interrogative sentences. Now we have sentences which have ditransitive verb. Ditransitive verb मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं. We can say sentences with
डबल ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस है, देखो एक सेंटेंस है, ही टीचेस अस, ही टीचेस अस, वो हमें पढ़ाते हैं, ये एक सेंटेंस है। इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये वर्ब है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, ठीक है। बट अगर मैं ये भी लिख दूं साथ में कि वो हमें क्या पढ़ाते हैं, तो बाद में आएगा वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। लेकिन अगर मैंने लिख दिया आगे ही टीचर्स अस इंग्लिश, अब ये इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, तो ये सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट तो यहाँ पे है और वो बाद में आता भी नहीं है सब्जेक्ट, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। ये अस ऑब्जेक्ट 1, इंग्लिश ऑब्जेक्ट 2। हम बोलते हैं ही टीचेस अस, हम ये भी बोल सकते हैं ही टीचेस इंग्लिश। तो ही टीचेस इंग्लिश में इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ही टीचेस अस में अस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमने एक साथ लिख दिया, ही टीचेस अस इंग्लिश, अस इंग्लिश ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। नाउ हाउ विल वी कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस व्हेन वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स। अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा ये देखना है। So when we will convert this sentence into passive voice with object us, first we will convert us into we, object is we, sorry, subject is we of object us, so we have converted into we। then अब देखो he teaches का क्या हो जाएगा, we are taught by him, बट यहाँ पर इंग्लिश भी है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट 2 है। सो दैट विल बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। वी आर टॉट इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। ये इंग्लिश यहां पर भी ऑब्जेक्ट था, यहां पर भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट थे और इस सेंटेंस में भी दो ऑब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और बाय हिम, ठीक है। नंबर 2, अब हम इंग्लिश को लेके हम बनाते हैं हमारा पैसिव वॉइस। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, ये होगा। लेकिन अस का क्या होगा, इंग्लिश इज टॉट अस बाय हिम, ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको, हम अस के पहले टू लगा देंगे। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। दीज आर द टू वेरिएंट्स टू कन्वर्ट अ सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स इनटू पैसिव वॉइस। इफ यू आर स्टार्टिंग पैसिव वॉइस with object 1, then place the object 2 as it is before the main object that is with by। by के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसको लगाने से पहले हम ऑब्जेक्ट 2 को प्लेस कर देंगे। एंड इफ वी आर कन्वर्टिंग सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट 2, अगर ऑब्जेक्ट 2 से हम सेंटेंस को बना रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट 1 है उसके पहले हम 2 लगा देंगे। गॉट इट। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम एंड इट इज बेटर इफ यू कन्वर्ट सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट 1। अगर आप ऑब्जेक्ट 1 से ही सेंटेंस को क्रिएट कर लेते हो तो ज़्यादा वो सिंपल है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, केवल अस, इस सेंटेंस में केवल अस को हम पहले लेके आ गए। वी आर टॉट इंग्लिश, और ये English as it is has come here and we have placed he with by him. All right. So in this manner
we convert a sentence having two objects into passive voice, and these are the two variants. So in this manner we have learned today that how to convert active voice into passive voice, what are the basic rules, how to convert assertive sentence into passive voice. उन्हीं रूल्स के साथ हम ये भी समझ गए एक सिंपल सा assertive सेंटेंस जो होता है वो कैसे कन्वर्ट होता है पैसिव वॉइस में, और जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे कन्वर्ट होंगे पैसिव वॉइस में, ये हमने सीखा। और अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये हमने सीखा कि ये पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होगा। ऑलराइट, सो वेट फॉर दी अदर वीडियो। दूसरा वीडियो जो है उसमें हम बताएंगे कि बाकी के जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस या अदर टाइप ऑफ सेंटेंस है वो कैसे कन्वर्ट होंगे। सो होप you have understood all the things which I have taught to you. Thank you very much.